नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। भारत चाइना के रिश्ते एक बार फिर से गर्माते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को फिर से अपने नक्शे में दिखाया है। चीन की इस हरकत पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने चीन की कड़ी निंदा की। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग इरिंग ने मोदी सरकार पर जोरदार टिप्पणी की। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई खास बातचीत में नाबम तुकी ने चीन की इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार को चीन पर दबाव डालना चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने जारी किए गए नक्शे को वापस बदले। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई खास बातचीत में नाबम तुकी ने चीन की इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार को चीन पर दबाव डालना चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने जारी किए गए नक्शे को बदले। नाबम तुकी के साथ साथ अरुणाचल पूर्व के सांसद निनोंग इरिंग ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि चीन की ये गलती माफी के भी लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे ज्यादातर तभी आते हैं जब भारत से कोई चीन दौरे पर जाता है। Showing this type of map inside China really the heartening to the people of the state, and it gives a lot of sentiment. Therefore, I think we should request the government of China to correct this at the earliest possible time. Also the Google map, sometimes which they show different directions, that should be corrected once for all. I hope he will take up this issue with the Chinese government, because this is international issues. The foreign minister is dealing with the subject. I don't have any official records to comment on the day-to-day business or actions, whatever the central government is doing. But I have a big hope that the government of India will take up this matter seriously with the counterpart. And we are a peace-loving people, and we are a patriotism to the nation. We are sentinel to the nation, and we are guarding the nation. And the democratically elected government rule the state for since long. Why they should take it so easy, and why they should underestimate the elected government? Therefore, it is a matter of serious to be discussed in the international forum. At the very outset, we would really condemn the act. It's an act which is, which cannot be forgiven. We also expected Achhe Din Aayenge. We had a lot of good, dignitaries from throughout the neighboring countries coming to India, and shaking hands with us. We thought that we will improve our cordial relations. We were fully supportive with it. And in my last President's address also, I had said that we welcome, the new government, and we want that, we support it on issues. And this is also one issue where we will have to support, if at all the government takes it a very firm stand. This issue should be taken up seriously. It should be viewed very seriously. If not, then we will even have to, take out programs. Even in Delhi, we have to show the world that Arunachal Pradesh is part and parcel of India. चीन के जारी किए गए नक्शे पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी तोड़ी चुप्पी। किरण रिजिजू ने कहा कि चाइना ऐसा पहली बार नहीं किया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भारत और चीन के बेहतर संबंधों के लिए चीन के दौरे पर हैं। ऐसे में चीनी सरकार को इस तरह के नक्शे जारी करने से खुद को रोकना चाहिए। साथ ही किरण रिजिजू ने यह आश्वासन दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा सतर्क कदम उठाए जाएंगे और चीन के ऐसा करने से अरुणाचल प्रदेश की जमीनी हकीकत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। No, it is not the first time the Chinese have produced a map showing Arunachal as part of the People's Republic of China. But the thing is, we are upset because when our Vice President is there in Chinese territory, they should have displayed more restraint by showing Arunachal as part of China. Doesn't change the ground reality. We are taking up adequate steps to ensure that our sovereignty is not intruded upon, and I'm very careful that we are not going to be aggressive or destroy the relation with China in any manner. But we are doing certain things which the previous government has not done. We are going to take some extra steps so that this kind of misadventure on the ground
or anything else do not take place. Government of India needs to step up our efforts to develop the border areas. That is important. And the subject wise, this is since External Affairs Ministry will be dealing with their counterpart with China. I leave it to them, and I can tell you that our foreign ministry will be doing their best. But from our side, from the Home Ministry, for the securing of our border, we will do whatever is required. तांगखुल नागा महिलाओं ने दिल्ली में मनाई तांगखुल शानाव लॉन्ग दिल्ली की दूसरी वर्षगांठ। मुख्य अतिथि के रूप में मानवाधिकार की वकील नदिता हक्सर ने लिया था हिस्सा। TSLD यानी तांगखुल शानाव लॉन्ग दिल्ली को महिलाओं के अधिकार, शांति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये संगठन फेलिसिटा सोंगवाह के नेतृत्व में चलाया जाता है। फेलिसिटा को मानव तस्करी से बेसहारा बच्चों को बचाने के लिए जाना जाता है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में फेलिसिटा सोंगवाह ने बताया कि TSLD ने पिछले साल मार्च में छापा मारकर राजस्थान से 50 से ज़्यादा बच्चों को बचाया था और वो सभी बच्चे मणिपुर, नागालैंड, असम और नेपाल के रहने वाले थे। फेलिसिटा ने लगातार बच्चों की बढ़ रही तस्करी को लेकर सरकार की विफलता पर शोक भी जताया। I feel great. In just 2 years, we have achieved a lot. We have saved more than 57 children in just span of 2 years time. So it's great feeling, but we still need to do a lot more, work harder. Government are so corrupted, and the systems are failed out there. That is the main reason a lot of children are trafficked, and a lot of the uneducated women moving out of the town, and they have no clue about the culture, about the lifestyle in a metropolitan city. अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रमेश नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से की अपील, कहा राज्य में विकास के लिए बनाए रखें शांतिपूर्ण माहौल। ईटानगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश नेगी ने कहा कि कैपिटल बंद रखने से किसी का भी फायदा नहीं है सिवाय सरकारी कर्मचारियों के। उन्होंने कहा कि आज भी अरुणाचल में बहुत बड़े वर्ग में लोगों का जीवन उनकी दैनिक आय पर निर्भर है और कैपिटल बंद से वो लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। रमेश नेगी ने कहा कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये संकेत दिए हैं कि वो इस बंद से खुश नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि लोग ऐसे बंद से तंग आ चुके हैं। We have tremendous potential of employment, skilling our children and sending them abroad. Sending abroad means beyond Arunachal. So today we have started it. Now, as I said, 1200 boys and girls last year got employment after taking the skill development program. And we shall be going beyond. I am sure our boys and girls will go beyond even India. So that is where we have to think. We have the benefit. Arunachal boys and girls have a great benefit of knowing 2 great languages, English and Hindi both. And I find a great hope and great opportunity in this state for 2-3 sectors, which we have been telling earlier, our Chief Minister has been telling. One is tourism. अरुणाचल प्रदेश में दोईमुख के गुमतो गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित किया गया एक दिन का कानूनी साक्षरता सह कानूनी जागरूकता शिविर। सदस्य सचिव और न्यायाधीश बूडी हाबुंग ने बताया कि इस कानूनी जागरूकता शिविर को आयोजित करने का उद्देश्य था कि क्षेत्र के ग्रामीणों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाए। एक दिन की इस कार्यशाला में कई मुद्दों पर बात की गई थी। उनमें से सबसे अहम है महिलाओं के अधिकार और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना। इसको बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली गांव क्या वो सब आदमी लोग जो है सिटीजन लोग पूरा आदमी लोगों का बारे में इतना नहीं जानता है। इनको अवेयर नहीं है कि उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटी क्या है और उनका क्या मैंने सपोजिंग हम लोग का विक्टिम कॉम्पेंसेशन ये जो स्कीम है उसका बारे में मालूम नहीं होता है। और सपोजिंग यहाँ पे पुलिस अरेस्ट होता है
या किसी केस में फंस गया है तो इनको पता नहीं होता है, वो पुलिस को डरता है, कोर्ट को डरता है। और हमारा काम है कि इनको पुलिस में अगर केस हो गया तो वो डरना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल ने किया नाहरलगन में एक जनरल अस्पताल का दौरा। स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल ने इस दौरे के दौरान चिकित्सा उपकरणों, दवा भंडार, मरीजों की शिकायतों और मौजूद डॉक्टरों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने समुचित कार्य के लिए सरकार, जनता, कर्मचारी और मीडिया से सहयोग के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी अपना काम ठीक से करें। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने सबको चेतावनी भी दी है कि वो कभी भी ऐसा सरप्राइज दौरा कर सकते हैं और दौरे के दौरान अगर किसी को भी दोषी पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। डॉक्टर्स का प्रोफेशन ऐसा है कि पेशेंट जब भी आएगा, रास्ता में भी बोलेगा, मार्केट में भी बोलेगा या घर में जाके भी उसका हेल्प मांगेगा या ट्रीटमेंट मांगेगा या प्रॉब्लम बताएगा, वो उसको अटेंड करना है, करेगा वो लोग। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उसको, कहीं भी कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई पेशेंट उसको फीस देता है नहीं देता है वो मेरा कंसर्न नहीं। फीस देता है भी अपना विलिंगली देता है, मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरे को 8 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे जब ड्यूटी है डॉक्टर, वो ड्यूटी में पाना है। डॉक्टर, नर्स, जो भी स्टाफ है, नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर का जो ड्यूटी लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है, उसको पाना है हमको। तो उसमें केवल मिनिस्टर का काम नहीं है, इसमें जितना भी इलेक्टेड लीडर्स है कोई भी सरप्राइज विजिट कर सकता है। मैं अपील करता हूँ जितना भी स्टेट का मिनिस्टर से विजिट करना चाहिए, एमएलएस, ऑनरेबल एमएलएस विजिट करना चाहिए, पंचायत लीडर्स विजिट करना चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स विजिट करना चाहिए, डिपार्टमेंट के भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और मीडिया भी विजिट करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं इशू हुआ तभी जाके आप इशू करो, पेपर में लिखो, ऐसा नहीं है। आप आज के बाद, मैं तो आज ऑफिशियली आया हूँ, मैं इनको बता के आया हूँ, आज के बाद मैं हाफ पैंट पहन के भी आऊँगा, ट्रैक सूट पहन के भी आऊँगा, दिन को भी आऊँगा, रात को भी आऊँगा, सुबह भी आऊँगा, चार्ट को देखूँगा। जो भी नहीं पाएगा उसको एज पर नॉर्म हम लोग एक्शन लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं स्टेट जनरल हॉस्पिटल नाहरलगुन के पास खड़ी हूँ, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल ने अपने विजिट के दौरान यहाँ के स्थिति की जायजा करते हुए उन्होंने सब जगह विजिट किए और यहाँ पे मरीजों से भी वह मिले हैं। उन्होंने अपने जायजे के दौरान उन्होंने ये बताया है कि स्टेट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेडिकल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों को दूर करेंगे। और साथ ही साथ में जो ट्रांसपोर्ट और पोस्टिंग की कमी है, यहाँ पे अरुणाचल पे इंटीरियर जगह पे बहुत सारे जगह है जहाँ पे डॉक्टर, नर्स और दवाइयों की कमी होती है, उसको भी जल्द से जल्द ठीक करने की उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही साथ डॉक्टर, जो गवर्नमेंट डॉक्टर जो ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक को प्रैक्टिस करती है, उनको ये वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उनको पाया जाएगा अपने ड्यूटी के समय ऑफ ड्यूटी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसकी भी घोषणा की है उन्होंने। कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ मैं कारपुचे सी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के टाउन बाप्टिस्ट चर्च में क्रिश्चियन यूथ एंडीवर ने आयोजित किया म्यूजिकल नाइट। क्रिश्चियन यूथ एंडीवर द्वारा आयोजित की गई म्यूजिकल नाइट में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के कई चर्चों ने हिस्सा लिया था। टाउन बाप्टिस्ट चर्च के युवा डायरेक्टर और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर नीत तांगाम ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद था गुमराह हुए युवकों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि वो अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जिएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के प्रोग्राम युवाओं को उनके छिपे हुए टैलेंट को सामने लाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सभी युवाओं से अपील भी की कि वो नशीले पदार्थों से दूर रहें जो उनकी लाइफ को खराब कर सकते हैं। वर्ब इंटरटेनमेंट ने एनिम जंकी के सहयोग से ईटानगर में पहली बार आयोजित किया कॉस्प्ले। कॉस्प्ले का फुल फॉर्म है कॉस्ट्यूम प्ले। इसमें प्रतिभागी एक अलग किरदार को दिखाने के लिए अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं। इस प्रोग्राम को आयोजित किया है ईटानगर की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वर्ब एंटरटेनमेंट ने, जो कि अभी नई स्थापित हुई है। वर्ब एंटरटेनमेंट के क्रिएटिव डायरेक्टर बिनी न्यूक्योन ने इस प्रोग्राम की कई बातों को साझा किया। Cosplay actually stands for, it's a short for costume play. That's an annual event. This is an annual event actually which happens in Japan in late September. Well, we brought together a couple of guys from Anime Junkies, which is a Facebook page. They were quite excited and they were passionate about doing that event. So, but they were somehow pulling it through. So we thought of like, let's give them a pushing hand, and we pulled it out together. And here we are with Cosplay Con 2014.
अब एक खबर दिल्ली विश्वविद्यालय से है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीटेक छात्रों को यूजीसी ने दी बड़ी राहत। साल 2013-14 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र के लिए 4 साल का ही रहेगा कोर्स। डीयू के बीटेक छात्रों को यूजीसी से बड़ी राहत मिली है। अब सत्र 2013-14 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए कोर्स 4 साल का ही रहेगा। हालांकि अभी बीएमएस कोर्स पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल दोनों कोर्स बीटेक और बीएमएस पिछले साल से ही डीयू में शुरू किए गए थे, लेकिन अब इन दोनों कोर्सेज में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। यूजीसी के निर्देशों का पालन करने के दबाव में डीयू ने अपने 4 साल के स्नातक कार्यक्रम को समाप्त करके पहले की तरह 3 साल के पाठ्यक्रम में बदल दिया है। आज से हो गई है पवित्र महीने रमजान की शुरुआत। शनिवार को चांद नहीं दिखने से आज से शुरू हुआ है रमजान का मुबारक महीना। इस्लामी कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत आज से हो गई है। अगर चांद शनिवार को दिख गया होता तो रमजान की शुरुआत रविवार से हो जाती। वहीं केरल में मुसलमान रविवार से ही रोजा रखेंगे, क्योंकि वहां शनिवार शाम को चांद देखा गया था। रमजान के 30 दिन के सफर के बाद चांद आसमान पर दिखाई देगा, जिसके बाद खुशियों का पर्व ईद धूमधाम से मनाया जाएगा। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज का खिताब। फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मैरिन को हराया। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज का खिताब जीत लिया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए साइना ने फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मैरिन को हराकर $7,50,000 इनामी राशि वाला टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। 43 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में साइना ने 21-18, 21-11 से जीत दर्ज की। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से कल सुबह शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने रथ यात्रा पर लोगों को दी बधाई। 400 साल से अधिक पुराने प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से कल सुबह भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार हाथियों ने पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा के मौके पर लोगों को बधाई दी और देश में शांति, समृद्धि और बारिश के लिए प्रार्थना भी की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर दिए गए बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दिया साईं भक्तों का साथ, वहीं उमा भारती पर शंकराचार्य भड़क गए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती इस मामले में साईं भक्तों के साथ खड़ी दिख रही है। उन्होंने शंकराचार्य के बारे में टिप्पणी करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने साईं बाबा के प्रति आस्था की बात कही है। वहीं उमा भारती को इस मामले में पढ़ते देख शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भड़क गए हैं। उन्होंने उमा भारती को इस मुद्दे में ना पढ़ने की सलाह दी है। शंकराचार्य ने कहा है कि उमा भारती को जनता ने शासक के रूप में चुना है, उन्हें धर्म के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उमा भारती मंत्री है, कोई भगवान नहीं है। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।